So students, let us start with the chapter number 1, number system. So you people already know that the computers, they do not understand the language we people speak. That means the computer, they don't understand English, they don't understand any other language that the humans speak. They understand only the machine language. Which language does they understand? Machine language. And machine language is having 0 and 1. What are they having? 0 and 1. That means whatever we are whatever input we are giving to the computer is converting that input in the form of zeros and 1. And then the computer is understanding that. For example, हमने कोई नंबर दिया कंप्यूटर में 2. So what the computer will do? Computer will convert this into machine language. Okay, computers will convert this into machine language, and then it will get some result like this, 1 and 0, in the form of 1 and 0, and then computer will understand, okay, this means 2. Understood? So the language that uses 0 and 1 is known as the which language? Binary language. Binary language. Binary language means that is having only 2 digits, because bi means 2. So binary language is a language that is having only 2 digits. Alright. Now I would like to tell you about the different types of the number systems that we are having. Different types of the number systems that we are having. So we are having number systems such as the decimal number systems. Decimal number systems we are having. Binary number systems we are having. Okay, then we have hexadecimal and the octal number system. So these are the 4 types of number systems that we are having. Decimal numbers are those numbers that we usually speak. For example, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. So these are what? These are the normal mathematics numbers. So these are known as the decimal numbers. When we talk about binary language is having only 2 digits, that is 0 and 1. Similarly, hexadecimal number is also having different types of numbers, and octal number systems are also having different types of numbers that we'll talk about later. Now in the number systems, for example, any number is written. So how will I find out that this number is decimal or this number is binary? So in that case, if a number is decimal, then उसके बेस पे हम इस तरीके से we write 10. ठीक, अगर कोई भी नंबर लिखा है एंड उसके बेस पे 10 लिखा है, दैट मीन्स ये कौन सा नंबर सिस्टम हुआ? डेसिमल नंबर. दैट मीन्स ये 2 है. ठीक, अगर कोई नंबर इस तरीके से लिखा है, फॉर एग्जाम्पल नंबर इज रिटन 11, तो ये हमें 11 लग रहा है, लेकिन अगर उसके बेस पे 2 लगा है, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनरी नंबर. इट इज़ व्हाट नंबर? बाइनरी नंबर, बिकॉज बाइनरी इज हैविंग 2. सो अगर किसी नंबर के बेस में 2 लगा है, दैट मीन्स इट इज़ अ बाइनरी नंबर. एंड वी विल फाइंड आउट कि 1 का मीनिंग क्या होता है बाइनरी लैंग्वेज में. देन इफ़ एनी नंबर इज़ लाइक 101 एंड उसके बेस पे लगा है, फॉर एग्जाम्पल एंड स्पेस द नंबर इज़ 8. सो आप लोगों को पता है दैट 8 के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? ऑक्ट. तो अगर कहीं पे भी बेस में 8 लिखा है, दैट मीन्स दैट नंबर सिस्टम इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम. एंड फाइनली अगर कोई ऐसा नंबर सिस्टम है जिसके बेस में लिखा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी नंबर है 1011 एंड उसके बेस में लिखा है 16. सो फर्स्ट अगर किसी के भी बेस में 16 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ व्हाट नंबर सिस्टम? इट इज़ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम. सो फ्रॉम दिस यू कैन अंडरस्टैंड दैट हमारे नंबर सिस्टम्स में 4 तरीके के नंबर्स होते हैं. फर्स्ट इज़ बाइनरी, फर्स्ट इज़ डेसिमल, सेकंड इज़ बाइनरी, थर्ड इज़ हेक्साडेसिमल एंड फोर्थ इज़ ऑक्टल नंबर सिस्टम. और डिस्टिंग्विश हम कैसे करते हैं? हम ये देखते हैं कि उस नंबर के बेस में कौन सा नंबर लिखा है. कोई भी नंबर लिखा है, उसके बेस पे क्या लिखा है. अगर किसी भी नंबर के बेस पे 10 लिखा है तो वो डेसिमल नंबर होता है. किसी भी नंबर के बेस में 2 होता है, दैन इट इज़ अ बाइनरी नंबर. अगर किसी भी नंबर के बेस में 8 होता है, दैन इट इज़ अ ऑक्टल नंबर.
और अगर किसी नंबर के बेस में 16 होता है देन इट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो तो हमारे नॉर्मल मैथमेटिक्स के नंबर्स होते हैं, तो हम इनको ईजिली पता कर सकते हैं कि लाइक अगर 21 लिखा है तो हम समझ जाएंगे कि ये 21 है क्योंकि वो डेसिमल नंबर है। लेकिन अगर 11 लिखा है तो बाइनरी में 11 का मतलब 11 नहीं होता, 11 का मतलब कुछ और होता है, और हम इनको कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तभी हमें पता चलता है कि एक्चुअल में कौन से नंबर्स हैं। जैसे कि हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को इंग्लिश की लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, तभी तो हमें समझ में आता है कि अच्छा इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है। ऐसे ही ये जो बाइनरी नंबर्स है हम इनको कन्वर्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि ये एक्चुअल में कौन से नंबर्स हैं। ऐसे ही हम बाइनरी नंबर को भी कन्वर्ट करते हैं, ऑक्टल नंबर को भी कन्वर्ट करते हैं, और हेक्साडेसिमल नंबर्स को भी डेसिमल नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट हमें पता चले कि ये एक्चुअल में कौन से नंबर्स हैं। क्योंकि बाइनरी नंबर, ऑक्टल नंबर और हेक्साडेसिमल नंबर्स कंप्यूटर यूज़ करता है। अंडरस्टूड? अब जब भी हम कोई भी कन्वर्जन करते हैं, सी आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ कि जब भी हम कन्वर्जन करते हैं वो हम बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल नंबर्स का करते हैं इनटू डेसिमल नंबर्स। डेसिमल नंबर्स मीन जो हमारे मैथ्स के एक्चुअल नंबर्स होते हैं, ठीक। तो अगर बाइनरी नंबर है कोई तो हम उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमको एक्चुअल में पता चले कि कौन सा नंबर है। और ऑक्टल में कोई नंबर दे रखा है हम उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दे रखा है हम उसको भी डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। तो जब भी हम किसी भी नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसके लिए एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है वो ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कोई नंबर लिखा है 1011। तो जैसे कि मैथ्स में लास्ट ईयर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था ना, मैथ्स में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पीपल मस्ट हैव स्टडीड। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि ये जो नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जो है वो यहाँ पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये जो 1 है ये यहाँ पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। ये जो 0 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, और ऐसे ही ये जो 1 है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, पहले जो था हम प्लेस वैल्यू, हम मैथ्स में हम प्लेस वैल्यू कैसे करते हैं, 1s, 100s, 10s, 100, 1000 इस तरीके से करते हैं। लेकिन इसमें जो हम प्लेस वैल्यू देते हैं वो देते हैं 0 से स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 जो है इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, 0, यानी कि कौन सी पोजीशन पे, 0 पोजीशन पे, ठीक। जैसे कि आप लोग क्लास में लाइन बनाते हो ना, फर्स्ट नंबर पे कोई खड़ा होता है, सेकंड नंबर पे कोई खड़ा होता है, थर्ड नंबर पे कोई खड़ा होता है। ऐसे ही जो सबसे पहले नंबर पे खड़ा होता है उसको हम कौन सी पोजीशन देते हैं, 0। सेकंड नंबर पे जो होता है उसकी पोजीशन देते हैं हम 1। जो थर्ड नंबर पे खड़ा होता है उसको पोजीशन हम देते हैं 2, और जो फोर्थ नंबर पे खड़ा होता है उसको पोजीशन हम देते हैं 3। दैट मीन्स जैसे जैसे पोजीशन बढ़ती है उससे एक कम हम उसको नंबर देते हैं। फॉर एग्जांपल 1 को हमने दिया 0, 2 को हमने दिया 1, 3 को हमने दिया 2, 4 को हमने दिया 3। ऐसी 5th होता तो हम उसको देते 4, 6th होता तो हम उसको देते 5। तो आप लोग को समझ में आया दैट वी हैव हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नंबर्स, वी हैव 4 टाइप्स ऑफ नंबर्स, डेसिमल, बाइनरी, हेक्साडेसिमल एंड ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो जैसे ही हमारी प्लेस वैल्यू होती थी, लाइक मैथ्स में हमारी प्लेस वैल्यू होती है, इस तरीके से जो हम पोजीशंस देते हैं नंबर्स को, जो भी हमारा डिजिट दे रखा होता है उसमें हर नंबर को हम पोजीशन जो देते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं पोजीशनल वैल्यू सिस्टम। व्हाट डू वी कॉल इट, वी कॉल इट पोजीशनल वैल्यू सिस्टम। ऑलराइट। फिर हमें कोई भी नंबर दे रखा है 1011 या फिर 11 दे रखा है, हमें 101 दे रखा है, 1011 दे रखा है, तो हमें नहीं पता ये नंबर्स क्या लिखे हैं, बिकॉज ये तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में है, ये तो बाइनरी लैंग्वेज में है। तो हमें पता करना होगा कि ये एक्चुअल में कौन से नंबर्स हैं। तो उसके लिए हमें 3 थिंग्स वी रिक्वायर टू फाइंड आउट कि कौन सा नंबर है एक्चुअल में। तो पहला तो होता है उसका कि उसकी पोजीशनल वैल्यू क्या है, उसकी पोजीशनल वैल्यू क्या है। फॉर एग्जांपल ये नंबर था 1011, तो इसमें 1 की पोजीशनल वैल्यू है 0, इस वाले 1 की पोजीशनल वैल्यू है 1, इस वाले 0 की पोजीशनल वैल्यू है 2, और इस वाले 1 की पोजीशनल वैल्यू है 3। तो जो पोजीशनल वैल्यू है वो हमें पता है। दूसरा, अगर इसके जो बेस में जो नंबर है वो 2 दे रखा है तो ये 2 भी हम यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि ये कौन सा नंबर है। तो सेकंड हो गया हमारा कि उस नंबर का बेस क्या है, ठीक। और थर्ड होता है द डिजिट इटसेल्फ, ठीक। दैट मीन्स द डिजिट इटसेल्फ।
दैट मीन्स ये जो नंबर हमें दे रखा है, ये नंबर, इसकी पोजिशनल वैल्यू क्या है और इसका बेस क्या है। हम इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हैं टू फाइंड आउट कि एक्चुअल में इस नंबर की वैल्यू कितनी है। ऑल राइट, so this was all for today's class. I hope that you people understood that we have 4 types of number systems that are used in computer. First is decimal, second is binary, third is hexadecimal and fourth is octal number system. डेसिमल नंबर्स वो होते हैं जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं एंड उसका बेस होता है 10। दैट मीन्स अगर किसी भी नंबर के बेस में 10 लिखा है, दैट मीन्स इट इज़ अ नॉर्मल मैथ्स नंबर दैट वी यूज़। ओके, अगर किसी भी नंबर के बेस में 2 लिखा है, दैट मीन्स वो बाइनरी नंबर है और वो भी कंप्यूटर यूज़ करता है। किसी भी नंबर के बेस में 8 लिखा है, दैन इट इज़ एन ऑक्टल नंबर, और किसी भी नंबर के बेस में 16 लिखा है, दैन दैट इज़ अ हेक्साडेसिमल नंबर। ऑलराइट, सो वील कंटिन्यू दिस। आई विल एक्सप्लेन टू यू कि अब इन नंबर्स को हम फाइनली कन्वर्ट कैसे करते हैं। दिस आई विल टेल यू इन दी नेक्स्ट लेक्चर। टिल दैट टाइम यू पीपल हैव टू रिवाइज whatever I have taught from the book. Okay, and thank you so much.